Bismillahirrahmanirrahim. We were talking about oxidation of the benzene side chain. Side chain of the benzene ring can be oxidized, and there are the few options. Simply speaking, the side chain of the benzene ring can change into a carboxylic acid. If there is primary carbon, if there is secondary carbon, or a huge carbon chain is even though over here, then there is ultimate cleavage of the CC bond, and one carbon outside the benzene ring change itself into the benzoic acid. Let me change the color of my pen. It is said to be side chain oxidation. जब भी साइड चेन ऑक्सीडेशन होगी, अगर हो सकती है सिंपल अल्काइल ग्रुप लगा हो तो हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, then you will write carboxylic acid on the side chains. If there are any type of benzene ring or any other aromatic compound or arenes or the groups are present over here, अगर एक बेंजीन रिंग लगा हुआ है, if the if side chain is having two benzene ring, then there must be two hydrogen atom with this carbon. So in this case, even you can oxidize this carbon at the moment, and it can be changed, or it will change. There is only one option. It will change itself into a ketone, a keto group. That is said to be biphenyl ketone. If there are overall, I'm talking about, if this side chain is having overall 3 benzene group, then this carbon cannot be oxidized. If there is a benzene ring over here and there is only one hydrogen left behind with the carbon atom, this compound cannot be oxidized. And the compounds like that, those are having more benzene ring, when the carbon is only left with one hydrogen, it cannot be oxidized. ये further oxidize नहीं होगा. It will remain unchanged. बाकी मैंने आपको बताया है side chain oxidation में. Once again, we add potassium dichromate. So yes, we can add it, KMnO4 in alkaline solution, in acidic solution. We can heat, or we should heat, and we apply the reflux. हम OH negative ion शुरू में ऐड करते हैं in all type of KMnO4 and K2Cr2O7, especially whenever we are going to oxidize anything. These KMnO4 and K2Cr2O7 oxidizing agents behave very much efficiently in the presence of an alkali. So alkaline medium पहले ऐड किया जाता है, then this medium is changed into acidic medium. Finally, just keep in your mind, if you are using initially OH negative ion over here, then finally you have to add acid. Sometime कुछ books में यूं भी लिखा, when number 1 KMnO4 plus H positive ion and so on. Number 2 initially OH negative ion, number 2 at the end positive ion, H positive ion. So there are more than 2 different methods, more than 2 different ways. लेकिन याद रखें कि आखिर में आपने एसिड लाजमी ऐड करना होता है. अगर आप एसिड ऐड नहीं करेंगे तो एक प्रॉब्लम होगा. वो क्या होगा? देयर विल बी द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स दैट मे बी फॉर्म्ड, और देयर इज द पॉसिबिलिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स. ये क्या हो गया? अच्छा खैर, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? आई एम गोइंग टू ऑक्सीडाइज दिस मिथाइल बेंजीन. सो दिस साइड चेन विल बी ऑक्सीडाइज्ड and it will convert into the carboxylic acid, simply speaking. If you are having alkali in your mixture, in the same container, in the same test tube, in the same jar, in the same beaker, let's suppose it was in form of sodium hydroxide, then this acid and this alkali will react together automatically. Obviously that is an you can say spontaneous reaction, and you will get a salt. Instead of a pure acid. You will not get an acid, you will get a salt in this case, like that.
सो याद रखें, अगर आपने कहीं पर भी ऑक्सीडेशन करनी है एंड यू आर गोइंग टू मेक एन एसिड, तो आप शुरू में अल्कली ऐड कर सकते हैं, यस इट इज ट्रू, बट एट द एंड यू हैव टू ऐड एसिडिक एक्सेस एसिड इनटू दैट कंपाउंड्स। क्योंकि हम ये एक्सेस एसिड डालेंगे तो ये जो साल्ट बन चुका होगा, दिस साल्ट विल बी चेंज्ड बैक इनटू द एसिड। दैट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। शायद आपने पहले सुनी हो, शायद ना सुनी हो, गौर से सुनिए अगर पहले नहीं सुनी हुई आपने। इट्स अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड that a salt, any type of salt can be changed into acid back. This is salt, sodium benzoate is known as, and if you want to back it into the acid, simply add a stronger acid, I mean in form of HCl you can add over here, or nitric acid. वैसे नाइट्रिक एसिड नहीं ऐड करना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड नहीं करना चाहिए। Whenever you are going to treat with the benzene ring or aromatic compounds, कभी भी नाइट्रिक एसिड यूज नहीं करना। I mean, अगर नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे तो बेंजीन रिंग के आपने रिएक्ट करने के चांसेस होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट या तो H पॉजिटिव आयन एक्वस लिख दें या बाय डिफॉल्ट HCl लिख दें, दैट इज सफिशिएंट, राइट। तो हम एसिड ऐड करेंगे, दिस रिएक्शन विल बी रिवर्स्ड, ये नेगेटिव चार्ज खत्म होगा, यहां से सोडियम भाग जाएगा और H इसकी जगह पर ले लेगा। I mean, H will be replaced or will replace this sodium and you will get again acid. This is a one step synthesis, one step reaction, one step mechanism that is not possible for the normal inorganic acids. अगर मेरे पास NaCl नेगेटिव आयन है तो मैं इसको आराम से फौरी तौर पर दोबारा HCl कंसंट्रेटेड में नहीं ऐड कर सकता हूं, बहुत ज़्यादा I mean ऐसा होना मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ अगर थोड़ा सा एसिड भी आप यूज़ करेंगे तो आप इस रिएक्शन को इमीडिएटली साल्ट को वापस लेके जा सकते हैं बैक इनटू द एसिड इनटू ओरिजिनल पोजीशन। बाकी जितने भी साल्ट हैं उनको ओरिजिनल पोजीशन में लेके नहीं जाया जा सकता। यू कैन नॉट कन्वर्ट दिस NaCl इनटू NaOH एंड इनटू HCl, ये आसानी से नहीं होगा, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। I mean, हो सकता है आपको इसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़े और शायद उससे भी ना हो, तो एक डिफरेंट मेथड होगा, दैट इज नॉट अ सिंपल मेथड। लेकिन जो ऑर्गेनिक साल्ट होते हैं जहां पर एसिडिक स्पीशीज आर ओवर हेयर, तो जो एसिडिक साल्ट है, ये एसिडिक साल्ट है सोडियम बेंजोएट, तो इसको या किसी भी और एसिडिक साल्ट को आप रिवर्स कर सकते हैं बाय सिंपली पुटिंग H पॉजिटिव आयन एक्वस H पॉजिटिव आयन इनटू द बीकर। तो ये एक चीज़ है, वो आपको याद रखनी है। मैंने तमाम कंडीशंस एक दफ़ा फिर आपको रिवाइज करवा दी हैं, बता दी हैं, जो कि आपको यू मस्ट हैव इन योर माइंड। द नेक्स्ट वन वाज आर्थो मेटा पैरा और आर्थो पैरा मेटा, आर्थो मेटा पैरा। तो मैंने कहा था कि जब भी बेंजीन रिंग का हम रिएक्शन करते हैं, नॉर्मली द फर्स्ट रिएक्शन इज अ नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन अगर जो सेकंड रिएक्शन है, सेकंड मीन इफ एनी ग्रुप दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, वो आने वाले ग्रुप को इन्फ्लुएंस करेगा, आने वाले ग्रुप को डायरेक्ट करेगा। आप अपनी मर्जी से किसी भी नए ग्रुप को बेंजीन के रिंग के साथ नहीं लगा सकते। अब OH की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। OH will direct or redirect that group towards the benzene ring. जो ग्रुप ऑलरेडी बेंजीन रिंग पर लगा हुआ है उसका इन्फ्लुएंस है इस वक्त, एंड इट विल स्पेशली चेंजेस टू पैरामीटर्स। नंबर वन, इट एक्टिवेट द एक्टिविटी ऑफ द बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग की एक्टिविटी और रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। नंबर टू, जितने भी एक्टिवेटर्स हैं they all are said to be OP directors, they all are said to be OP directors, वो नए आने वाले ग्रुप को O और P पर भेजते हैं, I mean ऑर्थो और पैरा पे भेजते हैं, with few exceptions you can say, as you know exceptions are always there, तो कुछ हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। So NH2 group is OP director, OH group is OP director, CH3 group is OP director. These all group are said to be OP directors, ortho para directors. These all are benzene activator. जब ये ग्रुप लगे होते हैं तो usually in first two cases there is no need to put any sort of catalyst, there is no need to heat the reaction mixture to change to make the feasibility of the reaction. आपको किसी किस्म का हीट करना नहीं है, आपको बिल्कुल कोई कैटलिस्ट नहीं ऐड करना पड़ेगा।
ये जो ग्रुप जो बेंजीन रिंग के ऊपर ऑलरेडी मौजूद हैं, दे आर गोइंग टू इनहांस द एक्टिविटी ऑफ द बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग की एक्टिविटी या एक्टिविटी को इनहांस किए जा रहे हैं, सो दे आर गोइंग टू मेक मोर ईज ऑफ द रिएक्शन। लेकिन बाकी ग्रुप कौन से होते हैं? अगर ओपी नहीं होते तो ओपी के अलावा जो होते हैं, दे आर सेड टू बी मेटा डायरेक्टर्स। द रेस्ट वन ग्रुप आर सेड टू बी मेटा डायरेक्टर्स। वो कौन से होते हैं? लेट्स टॉक अबाउट। कुछ ग्रुप मेटा डायरेक्टर्स होते हैं, वो अक्सर फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड हो, CH3, C डबल बॉन्ड हो, NH2, and similarly C double bond O ketone, aldehyde and so on। जहां जितने भी C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप हैं और जहां पर C ट्रिपल बॉन्ड N है, they all are said to be deactivators। ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। बेसिकली ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। दे आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। They are deactivating group and they are said to be meta directors। meta directors ये आने वाले नए ग्रुप को, if they are already present on the benzene ring, they will direct new group towards meta positions। इनकी मर्जी के बगैर ग्रुप नहीं लग सकते वहां पर। कीप इन योर माइंड, ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं और ये आने वाले को, नंबर वन दे आर डीएक्टिवेटर्स, नंबर टू यू कैन से दे आर मेटा डायरेक्टर एज वेल। नंबर टू ये मेटा पोजीशन पर भेजते हैं। एक स्पेशल केस है, आई मीन हैलोजेंस का केस है। स्पेशल केसेस में है हैलोजेंस। अगर बेंजीन रिंग के साथ Cl लगाओ, इट इज स्नैचिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द बेंजीन रिंग। ये बेसिकली बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इज गोइंग अवे फ्रॉम द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स Cl ग्रुप, सो इट इज आल्सो अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। दिस ग्रुप इज आल्सो अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बट इट इज येट OP डायरेक्टर। जी, कैन यू हियर मी? जी सर। ओके जी। दिस Cl ग्रुप इज बेसिकली येट OP डायरेक्टर। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है बेसिकली, लेकिन इन स्पाइट ऑफ डीएक्टिवेटिंग इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि आने वाले को फिर भी ये OP और O और ऑर्थो और पैरा पर ही भेजेगा। इट इज एन OP डायरेक्टर। ये एक एक्सेप्शनल केस आपने याद रखना है। सेम इज द केस विद द फ्लोरोबेंजीन। विद द फ्लोरोबेंजीन यहां पर F ग्रुप लगा हुआ है। इट इज ऑल्सो स्नैचिंग इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द बेंजीन रिंग। सो ये भी आने वाले को OP डायरेक्टर ही करेगा, टुवर्ड्स OP पोजीशन डायरेक्ट करेगा, बट इट इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। बेंजीन रिंग को कौन एक्टिवेट करता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं टुवर्ड्स बेंजीन रिंग। अगर आपके पास मेरी बुक है तो उसमें मैंने एरोज लगाए हुए हैं। OH के अगर बेंजीन रिंग के साथ है, NH2 बेंजीन रिंग के साथ है, एंड इफ द मेथाइल ग्रुप इज ऑन द बेंजीन रिंग, दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये सारे बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं एंड दे आर एक्टिवेटिंग द बेंजीन रिंग। ये डोनेशन कैसे होती है बेसिकली, या विड्रॉइंग कैसे होती है? यहां पर दो बेसिक इफेक्ट हैं, यू मस्ट नो अबाउट इट। बहुत ज़्यादा तो आपके सिलेबस में नहीं है इसकी डिटेल, फिर भी कुछ बताता हूं मैं आपको। बेसिकली फॉर एग्जांपल, द मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप इज NH2। लेट्स सपोज हमारे पास यहां पर एक NH2 है, या कोई N हो, लोन पेयर होना चाहिए उसके ऊपर। ये लोन पेयर जो है, इट विल बी कन्वर्टेड और इट विल बी मूव टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। ये लोन पेयर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज द सिचुएशन इन फैक्ट इंडीड। तो बेसिकली ये जो लोन पेयर है, इट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट और गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस कॉन्वॉय दैट इज ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन ऑन द बेंजीन रिंग।
ये बेंजीन रिंग के ऊपर जो ये पाई क्लाउड्स चल रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन है, ये उसका हिस्सा बन जाता है जाकर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज यहां पर डबल बॉन्ड, एंड एट द सेम टाइम ये बॉन्ड टूटकर इस कार्बन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नाउ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज ऑन द बेंजीन रिंग, हियर इज द डबल बॉन्ड, hydrogen hydrogen, and here is the single bond, you can say, sorry, not single, over here, and you can write it over here. तो अब बेसिकली इस जो लोन पेयर है, जो ही ये बेंजीन रिंग के कॉन्वाय में शामिल होगा तो इट विल शो इट्स प्रेजेंस ऑन द आर्थो पोजीशन। ये यहां पर ब्लिंक होगा। अगर ये बॉन्ड आगे शिफ्ट कर दिया जाए तो इसकी एक और शक्ल बनेगी, ये यहां से घूमता हुआ यहां पर ब्लिंक करेगा। कुछ देर के बाद रेस्ट ऑफ द ग्रुप आर गोइंग टू रिमेन अनचेंज, और ये बॉन्ड वैसे का वैसे है। फर्दर मोर अगर ये बॉन्ड मैं यहां शिफ्ट कर दूं, या ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये बॉन्ड शिफ्ट, तो इट मीन्स दैट नाउ दिस नेगेटिव चार्ज विल बी एट दिस पोजीशन। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पर होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को डीलोकलाइज करता रहेगा, यानी ये दैट वाज नॉट ओरिजिनल फ्रॉम द बेंजीन रिंग। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है जो नेगेटिव फॉर्म में नेगेटिव चार्ज की शक्ल में बेंजीन रिंग के ऊपर घूम फिर रहा है। ये जहां जहां है वहां वहां से बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो जाएगा। यू नो बेंजीन रिंग एक्सक्लूसिवली रिएक्ट विद एन इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन रिंग सबसे ज्यादा जो रिएक्ट करता है वो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से करता है। जब एक बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज 2 पोजीशन पर होगा, नेगेटिव चार्ज 4 पोजीशन पर होगा, इफ द नेगेटिव चार्ज ऑन 6 पोजीशन, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू दीज पोजीशन। तो ये दैट इज द पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रोफाइल। जहां नेगेटिव चार्ज होगा वहां ड्राइविंग फोर्स जनरेट करेगा ये मॉलिक्यूल और खींचेगा उस इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ। सो बेंजीन इज एक्टिवेटेड नाउ। पहले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है बेंजीन के पास। वो जो सरप्लस इलेक्ट्रॉन है दे आर अपेयरिंग इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द कॉर्नर ऑफ द बेंजीन रिंग। वो डिफरेंट कॉर्नर्स पर ब्लिंक कर रहे हैं। तो ये ये घूमता रहेगा नेगेटिव चार्ज, कभी 2 पे ब्लिंक करेगा, कभी 4 पे, कभी 6 पे। कुछ मॉलिक्यूल के पास 2 पे ब्लिंक कर रहा होगा, एट द सेम टाइम कुछ मॉलिक्यूल के पास 4 पे, कुछ के पास 6 पे, सो ऑन। तो इसीलिए जब भी आप कोई इस तरह का ग्रुप रिएक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो उस वक्त जो नया ग्रुप बनता है, जो नया कंपाउंड बनता है, उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। उसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसी होंगी जिसमें जो न्यू ग्रुप है, फॉर एग्जांपल NH2 इसके ऊपर लगा हुआ है, जो नया इलेक्ट्रोफाइल है वो कुछ मॉलिक्यूल के आर्थो पर होगा और कुछ मॉलिक्यूल के पैरा पोजीशन पर लगा होगा। ये एक पॉसिबिलिटी है लाइक दैट। तो ये 2 किस्म के मॉलिक्यूल्स आपको नजर आएंगे, मिलेंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें सारी पोजीशंस ऑक्यूपाइड हों। आई एम गोइंग टू रेज इट नाउ। बेसिकली फॉर एग्जांपल हमने रिएक्शन किया है तो पहले NH2 ग्रुप था, नया आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इन तीनों पोजीशन पर बैठ गया है। ये भी पॉसिबिलिटी है। सारी पोजीशन दोनों आर्थो और पैरा आर ऑक्यूपाइड नाउ। यस इट इज ट्रू, इट इज द वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। नंबर 2, ये जो 2 मैंने आपको बताई हैं, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनके सिर्फ आर्थो पोजीशन जो है वो रिएक्ट करेगी, और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनके सिर्फ पैरा पोजीशन रिएक्ट करेगी। अब ये सारी पोजीशन कब रिएक्ट करती हैं? whenever you are going to make or add concentrated solution of electrophile। concentrated solution अगर आप ऐड कर रहे हैं, if you are putting concentrated solution of electrophile, तो ये तीनों के तीनों पोजीशन एट द सेम टाइम, they will react at the same time and there is the new groups। लेकिन एक और फैक्टर भी हो सकता है साथ, वो ये है कि अगर मैं कोई ऐसा ग्रुप लगाने जा रहा हूं, मैं एक ह्यूज और बल्कि ग्रुप लगाना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल
यहां पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है and I want to react it with this one group CI3 पॉजिटिव चार्ज. बेंजीन इस ग्रुप के साथ रिएक्ट कर सकती है हैप्पीली. वंस अगेन इट्स एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट्स एन एक्टिवेटिंग ग्रुप. तो ये आर्थो और पैरा पोजीशन पर एक्टिवेट करेगा बेंजीन रिंग को. और ये ग्रुप यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है. Even though we are using in excess, हम इस ग्रुप को बहुत ज्यादा ऐड कर रहे हैं बेंजीन के मुकाबले में, 3 टाइम्स ज्यादा ऐड कर रहे हैं, फिर भी ये सिर्फ और सिर्फ ये कंपाउंड बनेगा. हर पोजीशन, ईच एंड एवरी पोजीशन विल नॉट बी फैसिलिटेटेड इक्वली. ओनली दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड. या मैं इसको इधर लिख देता हूं. this compound will be formed. The reason is, यहां एक ऑलरेडी ग्रुप मौजूद है. If you are going to attach a bulky group to the benzene ring, ये एक ह्यूज बड़ा बल्कि ग्रुप है. अगर ये आके बेंजीन रिंग के साथ लगेगा यहां पर या यहां पर, तो ये आपस में इनकी कोलाइडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे. एक ग्रुप जो खड़ा हुआ है दैट इज NH2 जो ऑलरेडी है, ये तो शुरू से है और ये रहेगा. इसके साथ बल्कि ग्रुप अटैच नहीं कर सकते हम. इसे कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस. बेसिकली ये दो ग्रुप आपस में कोलाइड करते हैं, तो यहां पर ये बॉन्ड स्टेबली बन नहीं सकता, या बनेगा नहीं. तो कुछ केसेस में अगर ग्रुप बल्कि है तब भी सिर्फ एक पोजीशन जो है उस पर आके नया ग्रुप लगेगा. ऑल पोजीशन विल नॉट बी सेटिस्फाइड. लेकिन अगर आपने कम क्वांटिटी यूज की है, कंसंट्रेशन लो यूज की है, तब भी बेसिकली एक ही ग्रुप आकर एक ही पोजीशन पर आकर लगेगा. ठीक है, यहां तक कोई चीज समझ ना आई हो, कुछ पूछना चाहें प्लीज लेट मी नो. जी जी बताइए प्लीज. कैन यू हियर मी? I can't hear you. I don't know why. जी, can you hear me? Let me know, please. Yes, sir. जहां तक कोई चीज समझ ना आई हो बताइए प्लीज. आ गई सर समझ. Okay. Labanur, are you there? Labanur is not here. Okay. Now the next one is that was directive influence of the different group. The next one is अगर हमारे पास कोई भी कीटो ग्रुप लगा हो बेंजीन रिंग के ऊपर, या एसिडिक ग्रुप लगा हो, नाइट्राइल C++ लगा हो, then these group redirect or direct the incoming electrophile on the meta positions. These are the meta position. These are said to be 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Only 2 positions, 3 and 5 positions are there. They are said to be the meta position. ये meta positions हैं और यही जो हैं वो basically react करेंगी. So for example, I am going to react it with CH3 positive ion. अब ये deactivating group है, मुझे catalyst भी add करना पड़ेगा. I will have to use catalyst plus heat भी करना पड़ेगा आपको. Then the reaction will be in high percentage yield. Once again COOH, एक मिथाइल ग्रुप यहां पर आएगा और एक मिथाइल ग्रुप यहां पर आ जाएगा. तो अगर कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं वो बेसिकली बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे. आई मीन दे विल डिमांड कैटलिस्ट एंड हीट. वो हीट और कैटलिस्ट उनको चाहिए होगा फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दैट रिएक्शन. द सेकंड वन इज कि वो आने वाले नए ग्रुप को बेसिकली वो दे विल डायरेक्ट
टुवर्ड्स मेटा पोजिशन, वो उनको मेटा पोजिशन की तरफ भेजेंगे। यहाँ तक कुछ चीज़, कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो, कुछ पूछना चाहते हो, प्लीज़ लेट मी नो। जी बताइए प्लीज़। सर मिथाइल को एक्सेस में ऐड करेंगे? जी मिथाइल एक्सेस में होगा डेफिनेटली। अगर मिथाइल को एक्सेस में ऐड नहीं करेंगे तो फिर ये एक पोजीशन पर ही लगेगा। यू आर राइट। ठीक है सर। ओके, द नेक्स्ट वन इज फिनोल। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक है दैट इज फिनोल। व्हाट इज फिनोल? फिनोल में बेसिकली हम बेंजीन रिंग और उसके ऊपर OH ग्रुप, दैट कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी फिनोल। फिनोल की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। एज यू नो नाउ दिस इज अ यूनिक फंक्शनल ग्रुप, एंड कीप इन योर माइंड दैट इज नॉट एन अल्कोहल, दैट इज नॉट एन अल्कोहल। व्हाट इज अल्कोहल? Alcohols in which a OH group is the member of OH group is the member of simple carbon. OH group is bonded with a simple carbon. लेकिन फिनोल क्या है? OH group is the member of benzene ring. अगर हैं दोनों में OH ग्रुप, अगर OH ग्रुप को आप बेंजीन रिंग पर लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपका फिनोल, राइट? इट विल बी फिनोल। और अगर आप OH ग्रुप को सिंपल कार्बन पर लगाएंगे ये अल्कोहल बन जाएगा। बट देयर इज हाल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। इन दोनों की प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस है, दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत सारी डिफरेंट हैं। दिस फिनोल इज हैविंग बेंजीन रिंग, इसकी कुछ प्रॉपर्टी बेंजीन रिंग की वजह से है, एंड इट सेल्फ बिकॉज ऑफ द मेंबर ऑफ द बेंजीन रिंग, it is an acidic species. It is enough stronger acidic compound. ये एसिडिक है, और जो अल्कोहल है आपका वो आई मीन दैट इज वेरी मच पुअर एसिड, टू वीक टू बी कंसिडर एज एन एसिड, बहुत वीकर एसिड है। पानी में कभी भी H पॉजिटिव आयन पॉजिटिवली लूज नहीं करता है। ये एसिडिक कंपाउंड है, बेसिकली इट्स एन एसिडिक ग्रुप, एसिडिक कंपाउंड है ये। तो फिनोल की ये प्रॉपर्टी नंबर 1 यूनिक प्रॉपर्टी है, इट इज मेकिंग एन एसिडिक सॉल्यूशन। लेट्स सी ओवर हियर हाउ इट कैन बिहेव एज एन एसिड। जब भी आप फिनोल का रिएक्शन करवाएंगे, OH ग्रुप प्लस H2O, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन plus H3O positive ion. No doubt this reaction is reversible reaction because that is not very much, I mean, stronger acid. In fact, it's a reversible reaction. Benzene के साथ लगा हुआ OH group that is said to be phenol, ये फिनोल जब भी पानी में आप इसको डिसॉल्व करेंगे तो it will partially ionize into the water and it will make H positive ion solution, H positive ion aqueous ion into the solution, and a conjugate base is formed that is said to be phenoxide ion. Phenoxide ion. Phenoxide ion is the conjugate base. This H positive ion is the conjugate acid. It's a new acid, I mean conjugate acid. It's a conjugate base and so on. तो ये प्रॉपर्टी अल्कोहल में नहीं है। अल्कोहल कभी भी पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड नहीं बनाता, वरना कभी भी लोग इसको पी ना सकते। तो जो फिनोल है दैट इज नॉट एन अल्कोहल, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इससे नहीं मिलती। कम टुवर्ड सेकंड प्रॉपर्टी, फिनोल के पास 2 ग्रुप हैं, एक OH ग्रुप, आई मीन एक बेंजीन रिंग इटसेल्फ। ये जो OH ग्रुप है इट मे रिएक्ट विद वाटर, जैसे अभी आपने देखा है ये पानी के साथ रिएक्ट करता है। इट मे रिएक्ट विद एनी मेटल दैट दोज आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ हाइड्रोजन।
ये मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है. Here it is going to be make H2 gas, हाइड्रोजन गैस बनाता है. And in this case, it is going to make sodium phenoxide salt. Salt बनता है, that is sodium phenoxide. तो I'm going to tell you the chemical properties of the phenol. फिनोल की हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं. वंस अगेन, फिनोल इज नॉट एन अल्कोहल. ये उससे बहुत डिफरेंट है. कुछ प्रॉपर्टीज सेम है, बहुत सारी डिफरेंट है. OH ग्रुप की प्रॉपर्टीज सेम है, वो भी एसिड वाली सेम नहीं है. यस, ऑल अल्कोहल कैन रिएक्ट विद सोडियम. फिनोल कैन ऑल्सो रिएक्ट विद सोडियम. सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, किसी भी ऐसे मेटल के साथ ये रिएक्ट कर सकता है. दैट इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ hydrogen from their activity series, in their activity series. Now the next one is, this phenol can also react with sodium hydroxide. It can also react with sodium hydroxide. क्या बनना चाहिए प्लीज? गेस करें. What should be the product? जी, कुछ गैस करें. What should be the product? Salt plus water. Correct. Good. Salt plus water. H from here, OH from here. It is going to make water. And once again, the similar salt, O and Na will make, there's a sodium phenoxide is a salt. सोडियम पॉजिटिव, O नेगेटिव. लगा दें, शो करें ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन बहरहाल आपको आना चाहिए. सो OH group can react with water. OH group can react with metals. OH group can react with sodium hydroxide. तो ये बेसिक रिएक्शंस हैं OH के. एक और भी रिएक्शन है OH का, वो स्पेशल रिएक्शन है. It can make ester like alcohols, but it cannot make ester with acids. दोबारा सुन लें, ये एस्टर बनाता है. Yes, it is true, but it never react with carboxylic acid. ये एसिड से रिएक्ट करके एस्टर नहीं बनाता. ये किससे रिएक्ट करेगा? It will react with CH3, C double bond O, Cl. ये एसाइल क्लोराइड से रिएक्ट करके एस्टर बनाएगा. एसाइल क्लोराइड विल बी रिएक्टेड, और यहां पर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, एंड दे बोथ रिएक्ट टुगेदर इन फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. पहले ये सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, वो इसके साथ रिएक्ट करके यहां पर साल्ट बनाता है. वो सॉल्ट फर्दर इसके साथ जो जाके रिएक्ट करता है, एंड इट इज गोइंग टू मेक बेसिकली दिस वन. ये एक एस्टर बन जाता है. इट्स नेम इज फिनाइल इथेनोएट. इट्स नेम इज फिनाइल इथेनोएट. लेकिन अगर आप इसका रिएक्शन करवाएंगे एसिड क्लोराइड से तो रिएक्शन पॉसिबल है, वरना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा. तो ये 4 रिएक्शंस हैं बस. दैट इज बिकॉज ऑफ OH ग्रुप. That is because of OH group. Number 1, OH water reaction, OH with the sodium or any metal reaction, OH with sodium hydroxide reaction, OH with acid chloride reaction. तो ये 4 स्पेसिफिक रिएक्शन है. 5वां कोई रिएक्शन नहीं है बिकॉज ऑफ OH ग्रुप. जब भी क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपने यही सोचना है कि फिनोल इज गोइंग टू रिएक्ट, तो 2 चीजें फिनोल की रिएक्ट कर सकती हैं. फिनोल में 2 बेसिक ग्रुप हैं. एक है बेंजीन रिंग और एक है अदर देन बेंजीन रिंग. एक है OH ग्रुप. अगर OH ग्रुप रिएक्ट करेगा तो वो पानी में अपने आप को तोड़ेगा, डिसॉल्व करेगा, या मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, या वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, या वो एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा. बस
पांचवा, सोचना गलत है। टाइम खत्म हो जा रहा है, आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाल्लाह फिर मैं कल क्लास लूंगा तो बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग मैं आपको बताऊंगा।